Morning student, yesterday introduction of some instrument was given. So today we'll perform some activities you can try at home. Again, I would like to repeat, crucial time is going on. So you all know that you can see in the history that crucial time there was a constructive development. During plague disease in foreign country, the Newton's law was discovered by Newton. So, along with our study, we can perform some activities. And one more important thing, try to improve a constructive thought process in your mind. Avoid negative energy, avoid negative habits. Try to create some constructive habit. It will help you to build your future. So let us start. We will try to do more than 2 activities today. The first activity is that we all know that for combustion means burning. Burning of any substance, we need oxygen gas, O2 gas. In atmosphere, we have many gases. Amongst those gases, you all know that 2 gases are most important. One is oxygen, other is nitrogen. Nitrogen create an environment in atmosphere, but oxygen permit burning of any substance. So let us see the first experiment. So here we have a circular disc, one tissue paper. I put here some water. You can see water means water will not permit to pass in the gas. Now just take a candle is burning. Okay, it is burning. So here burning is continuously going on. This burning means combustion is happening with the help of oxygen gas. Here mainly in candle we have carbon, and carbon react with oxygen, means during burning there is a chemical reaction. Carbon react with oxygen means you can see here carbon react with oxygen gives carbon dioxide, and we are getting heat energy. This is the symbol of heat energy. So during the burning, generally carbon dioxide oxide gas is formed, and for that oxygen is needed. The main aim is that oxygen is needed while burning of any substance. So let us see. So here we have a glass. So we can put glass here. Let us see. Now you can see that burning stopped because absent of what? Oxygen gas. Absent of oxygen gas means inside the glass there was so many gases. 21% gas was what? Oxygen. और वो ऑक्सीजन गैस जलने के बाद, ऑक्सीजन गैस खत्म होने के बाद अंदर में थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस और एम्प्टी स्पेस फुल करने के लिए कोई गैस नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये जो टिश्यू पेपर और वाटर इसको परमिट नहीं कर रहे. नाउ सी ये ऊपर नहीं उठ रहा है. इसका मतलब है कि अंदर में कुछ स्पेस खाली है, और जो खाली है वो खाली स्पेस, द रीजन बिहाइंड दैट एम्प्टी स्पेस इज ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन जो था वो क्या हो गया, बर्निंग में यूज हो गया, और उसका फर्दर ऑक्सीजन गैस नहीं होने की वजह से बर्निंग स्टॉप हो गया. सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कम टू नो दैट फॉर combustion of any substance need oxygen gas. Now let us perform second activity. So here we have a beaker. You can take
अनदर कंटेनर ऑल्सो, आप लोग दूसरा कंटेनर ले सकते हो, ठीक है। बीकर में प्योर वाटर है, प्योर वाटर। प्योर वाटर मीन्स जिस वाटर में कोई मिनरल्स नहीं होते हैं, मिनरल्स होगा तो प्रॉपर्टी थोड़ा अलग होगा। सो प्योर वाटर मीन्स प्योर वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वाटर एब्सेंट ऑफ मिनरल। सो इस वाटर में थोड़ा सा टर्मरिक हम लोग दिया है। टर्मरिक मीन्स हल्दी। सो पानी में हल्दी देने के बाद कलर क्या हुआ, येलो कलर। सो यू कैन सी द कलर इज येलो। Now put some washing soda means surf on it. Surf देने के बाद you can see the color has been changed. The color हो गया रेड कलर। सो इससे हम लोग क्या पता चला है कि जो टर्मरिक होता है, हल्दी होता है, वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर मीन्स मैं थोड़ा बहुत लास्ट वीडियो में बताया था, इंडिकेटर होता है कि हम लोग कोई सब्सटेंस एसिड है ना बेस से वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। सो हम लोग लैब में दूसरा टाइप का इंडिकेटर है। सो आपको क्लास 9, 10, 8 में भी मिलेगा, 7 में भी है कि नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी एक बहुत अच्छा नेचुरल इंडिकेटर होता है। मतलब बेस ये जो हम लोग सोडा डाला है, मतलब ये जो सर्फ है, ये वन काइंड ऑफ बेस है। तो बेस में हल्दी डालने से, हल्दी मतलब इंडिकेटर, तो कलर क्या हो गया, रेड। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कम टू नो दैट हल्दी यानी टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर। तो हम लोग जो सर्फ डालने से कलर चेंज हो गया था, और हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो हल्दी है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। जो हम लोग बेस में डालने से कलर क्या हो जाता है, रेड चेंज हो जाता है। नाउ यू कैन सी इसी सॉल्यूशन में अगर हम लोग लेमन रस अगर डालते हैं, कलर फिर ओरिजिनल कलर आ रहा है, मतलब हल्दी का जो अपना कलर है वो कलर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। इसका रीजन है कि लेमन रस में एसिड होता है, और एसिड में आपका जो हल्दी है उसका कलर चेंज नहीं होता है। एसिड में कलर चेंज नहीं होता है, कलर चेंज सिर्फ बेस में होता है। Again we get the same color. हल्दी का जो ओरिजिनल कलर है, we are getting that one. So this is all about second activity you can perform at your home. मैं एक बार आपको बताता हूँ, ये सब एक्सपेरिमेंट आप अगर हार्डली करेंगे तो क्या होगा, दिमाग में परमानेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसको भूलने का चांसेस बहुत कम होता है। तो एक्टिविटी से ये फ़ायदा होता है कि अगर हम लोग थियोरेटिकली जब करते हैं ना, तो वो वोलेटाइल होता है, थोड़ा सा दिमाग से उड़ जाने का चांस होता है। और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है दैट इज़ जनरली परमानेंट एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कंटेनर में हम लोग पानी लिया है, एक्चुअली वाटर शुड बी प्योर, लेकिन ये उतना प्योर वाटर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। सो वाटर का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी वो 1 होता है। डेंसिटी का मीनिंग होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर में कितना मास है। तो वाटर के केस में क्या होता है, 1 लीटर वाटर व 1 लीटर मिल्क में का मास भी क्या होता है, 1 kg होता है। मतलब 1 लीटर और मास kg दोनों इसमें वाटर के केस में क्या होता है, सेम होता है। बट किसी में क्या होता है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, मास बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आयरन वगैरह का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आयरन का ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 13 के आसपास होता है। मतलब 1 लीटर आयरन का कितना kg होता है, 13 kg। तो वाटर से जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको साइंस में काम आएगा। वाटर से अगर डेंसिटी ज़्यादा है
तो वो पानी में क्या होता है, सिंक होता है, डूबता है, पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, 1 से अगर जिसका भी डेंसिटी ज़्यादा है, मोर देन 1, तो इट विल सिंक इन वाटर। अगर 1 से डेंसिटी अगर कम होता है, 1 से डेंसिटी अगर कम होता है, वो पानी में फ्लोट होता है। ठीक है, तो ये पानी में हम लोग एक लीमू डाला है, लेमन और एक पोटैटो। एक्चुअली लेमन भी ये थोड़ा सूखा हुआ लेमन है, एकदम फ्रेश लेमन होने से ये भी सिंक होना था, सिंक होना था। आप घर में ये एक्सपेरिमेंट गोल लेमन लेके कर सकते हो, गोल वाला जो गोल लेमन होता है ना, वो फ्रेश वाला। फ्रेश सूखा होगा तो थोड़ा क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाता है। तो यहाँ पे गोल लेमन नहीं है, इसलिए भी डूबना था अभी, मतलब दोनों डूब रहा है, मतलब डूबना था दोनों का डेंसिटी पानी से क्या है, ज़्यादा है। तो इस पानी में अगर हम सॉल्ट डालते हैं, नमक, सॉल्ट डाल देते हैं, तो पानी में सॉल्ट डालने से अभी देखो ये थोड़ा सा डूब रहा था, अभी ऊपर आ गया। हाँ, ऊपर आ गया कि पानी में सॉल्ट डालने से पानी का डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। डेंसिटी ऑफ वाटर विल इंक्रीज व्हेन सॉल्ट इज एडेड। तो ये क्या हो रहा है, आपका पोटैटो तो तभी फ्लोट नहीं होगा क्योंकि पोटैटो का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो लेमू का भी जो हाइट है थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ गया, पहले थोड़ा डूब रहा था, पहले ऊपर आ गया। आप ये एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली कर सकते हो। यू कैन सी यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया क्योंकि हम लोगों का सफिशिएंट सब्सटेंस नहीं है, प्रॉपर सब्सटेंस नहीं है। तो आप घर में ट्राई करना, मुझे शेयर करना। अगर कोई परफेक्ट रिजल्ट आता है, इफ यू गेट द परफेक्ट रिजल्ट, यू कैन सेंड वीडियो टू मी ऑल्सो, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर दैट वीडियो। ओके, एक्टिविटी में मेन हम लोग का पर्पस क्या था कि प्योर वाटर का जो डेंसिटी 1 है, ठीक है, और उससे ज़्यादा डेंसिटी वाला चीज़ अगर डालेंगे तो डूब जाता है, कम डेंसिटी वाला डालेंगे तो वो फ्लोट होता है। और पानी में अगर हम नमक डालते हैं तो पानी का डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, एक्टिविटी वी हैव वाटर, पानी। वाटर जनरली कंसिडर एज सोलवेंट, सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन में मेनली बाइनरी सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो जो पानी होता है उसको हम लोग जनरली सोल्वेंट कंसिडर करते हैं। प्योर वाटर इज कंसिडर्ड सोल्वेंट। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग इसमें जो भी डालेंगे वो सोल्यूट हो जाएगा, सोल्यूट। तो जनरली पानी वाला जो सॉल्यूशन है, वाटर एज अ सॉल्वेंट, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। एक न्यू नेम मिल रहा है आपको, हाँ, ये काम आएगा, एक्वस सॉल्यूशन। एल्कोहलिक सॉल्यूशन भी होते हैं। एल्कोहलिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट होता है एल्कोहल। तो ये हम लोग का कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये बहुत डेंजरस होता है, ये बर्निंग नेचर होता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी हम लोग डालेंगे, थोड़ा सा पानी में डाल दिया। सो नाउ इट बिकम सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी देखो, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, हम लोग जान गए। लेकिन अगर ये अननोन होता, अगर आपको दिया जाता कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो सॉल्यूशन है, ये एसिडिक है ना बेसिक है, आपको पता करना है। वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो ये आपका लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर। देखो ध्यान से, ये ब्लू लिटमस पेपर है। ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर मतलब जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि एसिड है ना बेस है। जैसे हम लोग सेकेंड एक्टिविटी में जो हल्दी था, वो हम लोग नेचुरल इंडिकेटर से पता किया था, वो बेस एक एसिड है। तो इसमें देखो हम लोग अगर हम लोग डालते हैं, ठीक है, इसमें डालने से ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या हो गया, ब्लू लिटमस पेपर लाइट ऑरेंज। एक्चुअली डिपेंड होता है कॉन्सेंट्रेशन का ऊपर। हम लोग बहुत कम डाला था
तो कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो टिप कलर होगा, मतलब रेड कलर, ऑलमोस्ट रेड हो जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन पीएच स्केल। हाँ, पीएच कितना है, पीएच एसिड का जो कंसंट्रेशन है, वो मतलब मेनली वो आपका पीएच स्केल से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पीएच स्केल। तो ये बहुत हल्का है, बहुत डाइल्यूट, हल्का मतलब डाइल्यूट एसिड, तो वाटर भी बहुत ज़्यादा डाला, उसमें थोड़ा सा एसिड डाला था। तो ब्लू लिटमस पेपर डालने से क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता तो रेड, ऑलमोस्ट इट विल बिकम रेड, लेकिन ये क्या हुआ, ऑरेंज कलर हो गया, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या था, कम था। तो इससे हम लोग ये मालूम चला कि कोई सब्सटेंस में अगर वो एसिड है, एसिडिक है सब्सटेंस, ठीक है, तो एसिडिक सब्सटेंस में हम लोग ब्लू लिटमस पेपर अगर डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर एक्जैक्टली क्या होगा, डेट विल डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे लिटमस पेपर तो मिलेगा नहीं आपको, नेचुरल लिटमस पेपर, नेचुरल जो इंडिकेटर है वो आप नेट में सर्च करके आपका पास जो अवेलेबिलिटी होगा, तो नेचुरल लिटमस पेपर से आप पता कर सकते हैं। घर में जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना भी आप चेक कर सकते हो, जैसे आपका पास हो गया चाय हो गया, यू कैन चेक डेट वन ऑल्सो। सॉल्ट वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर को तो एक्जैक्टली नहीं मालूम चलेगा, सर्फ वाटर में आप डाल के देखना, सर्फ वाटर हो गया। एसिड में आप लेमन जूस यूज़ कर सकते हो, लेमन जूस में डाल के देखो क्या कलर होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्थ एक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो विल शेयर मोर एक्टिविटी, एंड आप भी अगर कोई एक्टिविटी अगर घर में करते हो तो यू कैन शेयर टू मी, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दिखा दूंगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि क्रूशियल टाइम है, डाइवर्ट नहीं होना, माइंड को दूसरी जगह में लगने नहीं देना, अपना थॉट्स प्रोसेस को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना, हमेशा फ्यूचर के लिए सोचना है, ठीक है, एंजॉय भी करना है, हैप्पी भी रहना है, अपना काम करके खुश रहना है, एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, बहुत अच्छा था पढ़ाई में, लेकिन मोबाइल एडिक्टेड होने के बाद उसका मेंटल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। हमको भी बहुत दुख होता है जब स्टूडेंट अच्छा करते हैं ना, आप लोग अगर जब अच्छा करते हो मुझे बहुत खुशी होता है, बिकॉज आई एम फाइंडिंग हैप्पीनेस ऑन योर डेवलपमेंट। आपका अगर डेवलपमेंट होता है, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट होता है, तो हमको बहुत खुशी मिलता है। तो एटलीस्ट मेरा खुशी के लिए ट्राई टू डू बेटर। थैंक यू।